Namaskar, I am Anand and you are watching Join for Education. I am going to solve some asked question by SSC in the different year. Hope that this solution will be useful to the SSC aspirants. I dedicated this solution to one of my best friend. Let's start the solution. This is the question number one. Question number one, 5 men and 7 women can earn 5,250 per day. How much would 7 men and 13 women can earn per day? So let's see the rough work of this question will be in this way. First of all, we convert 7 men into women. So 7 into here will be 7 by 5 and plus 13 women. Then I write down here 13. This is the rough work. Here will be 49 plus 65 by 5. Then when we add 5 9 14 at hand 1, then here will be 114 by 5 women. How much earn? So 7 women earn 5,250. So according to this one, here will be 5,250 by 7 into here will be 114 by 5. So this one cancelled out by 5. Then we write down here 5 1 ja 5. Here 0, 5 5 ja 25, 0. And this one is also cancelled out by 7. Then here will be 15, 7 ja 105 and 1 0. And 150 multiplied by 114. Then we get here 1 0. 15 4 ja 60 at hand. So 15 4 ja 60 at hand 6. 15 1 ja 15 plus 6 21 at hand 2. 15 plus 2 here will be 17 and this is 1 0. We write down here 1 0. So 7 men and 13 women earn per day 17,100. Let's see, this is in option D. So the correct option of the question number 1 will be D. Hope that there is no problem to understand the rough work. Let's see the next question. I am going to read the question number 2. This is A and B together can complete a piece of work in 15 days and B alone in 20 days. In how many days A alone complete the work? This is very easy. For this question, we have the following rough work. We write down here 15 into 20 by here will be 20 minus 15 equal to 15 into 20 by 5. 5 3 is 15 and 23 is 60. So correct answer of this question will be 60. Let's see in which option we have 60. In option A we have 60. So the correct option of question number 2 will be A. This is the rough work. Hope that there is no problem to understand the rough work. Let's see the question number 3. I am going to read the question number 3. A can complete a piece of work in 18 days, B in 20 days and C in 30 days. B, C together start the work and first to leave after 2 days. The time taken by A alone to complete the remaining work. So find out the remaining work which will be completed by A. So B and C do or did this work for 2 days. So the remaining work will be, let's see the rough work, 1 minus 2 by 2 by 20 done by B plus C 30 days. So 2 by 30 and here will be
1 minus 1 by 10 plus 1 by 15, then this one will be 1 minus 15, LCM will be 30, so here will be 3 plus 2, 5 by 30, it means that 1 by 6, so we write down here 1 by 6 equal to 5 by 6. This is the remaining work which will be completed by A, and A complete the work in 18 days, so here will be 5 by 6 into 18, 6 3 is 18 and 5 3 is 15. So A will take 15 days to complete the remaining work. So in option C we have 15. So the correct option of the question number 3 will be C. Hope that there is no problem to understand the rough work for question number 3. Let's see the question number 4. I am going to read the question number 4. A can complete 1 by 3 work in 5 days and B can do 2 by 5 of the work in 10 days. In how many days both A and B together complete the work? So A complete the work in 3 into 5, 15 days. Let's see the rough work, 15 days, and B complete the same work in 10 5 50 by 2 equal to 25 days. In this question ask us in how many days both A and B together can complete the work. Therefore this one will be 15 into 25 by 15 plus 25 equal to 40. So 5 5 ja 25, 5 8 ja 40. So 15 5 ja here will be 75 and 8. When 75 divided by 8, then we get 9 upon 3 by 8. So the correct option of the question number 4 will be B. Hope that there is no problem to understand the rough work. For details, you can join my live class. Let's see the question number 5. I am going to read the question number 5. Question number 5 is in this way 7 men can complete a piece of work in 12 days. How many additional men will be required to complete the double work in 8 days? This question is based upon the formula M1 into D1 into W2 equal to M2 into D2 into W1. So here M1 will be 7 men, then we write down here 7, and D1 will be 12 days, and W2 will be 2, and M2 will be asked in this question. So write down here M2, and D2 will be additional men will be required to complete the double work in the same day or in 8 days. So we write down here 8, and W1 will be 1. So here will be 2 4 ja 8 and 4 3 ja 12. So here will be 21. So in this question ask us how many additional men will be required to complete double the work. Already we have 7 men, and according to the solution we need 21. So the additional men will be 21 minus 7 equal to 14. Let's see in which option we have 14. So in option C we have 14. So the correct option of the question number 5 will be C. For details you can join me on my live class every day. Let's see the next question, or next question I shall do in the next class. So hope that this solution will be the useful to the SSC aspirants. Now I am going to solve these questions in Hindi language. तो हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये उपयोगी हो, इसके लिए मैं ये सभी प्रश्नों को फिर हिंदी में भी सॉल्व कर देता हूँ. तो लेट्स सी, मैं पहला क्वेश्चन से ही इसको शुरू करता हूँ. आइए पहला प्रश्न को देखते हैं. पहला प्रश्न बोलता है कि 5 आदमी और 7 महिला 5,250 रुपये प्रतिदिन कमाई कर लेता है. तो 7 आदमी और 13 औरत या महिला प्रतिदिन कितना कमाई कर लेगा. इसके रफ वर्क को देखिए. पहले 7 पुरुष को हम लोग महिला में बदल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुने
7/5 और फिर 13 महिला को जोड़ देते हैं। तो अगर आप जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 49/5 और फिर आपका 13 हो जाएगा। अगर आप यहाँ लघुत्तम लीजिएगा तो 5 हो जाएगा और ये 49 + 65 हो जाएगा। जब आप इसको जोड़ दीजिएगा तो 9 5 14 का 4 हाथ में 1 बचेगा, 6 4 10 और 11 114/5। ये 7 आदमी और 13 महिला जो है 114/5 महिला में कन्वर्ट हो गया। तो ये इतना महिला कितना रुपया कमा लेगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 7 महिला 5250 रुपया प्रतिदिन कमाता है। तो फिर यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा देते हैं। 114 गुने हो जाएगा आपका बटा 5 गुने हो जाएगा 5250 बटा फिर ये 7 आदमी कमा रहा है तो ये 1 महिला इतना हो जाएगा। आप इसको यदि आप कैंसल आउट करेंगे तो 5 से कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा 5 1 5 फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 25 फिर 0 हो जाएगा। ये देखिए 7 से कट जाएगा 15 बार में तो 50 हो जाएगा। अब आप 114 को 150 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17,100 रुपया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। तो लेट्स सी ऑफ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। या रफ वर्क को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ हो। आइए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न बोलता है ए बी एक साथ मिल करके किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, बी अकेले 20 दिन में कर लेता है, तो ए अकेले कितने दिन में करेगा। इसके लिए जो शॉर्टकट मेथड है वो लगा देते हैं। ये 15 गुने आपका 20 हो जाएगा और फिर 20 माइनस 15 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 चौका 20 हो जाएगा और ये 15 चौका 60 हो जाएगा। तो ये 60 इसका आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन ए में ही आपका 60 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अब आप ये तीसरा प्रश्न को देख लीजिए। लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा कर लेता है, बी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर लेता है, सी उस काम को 30 दिन में पूरा कर लेता है, बी सी एक साथ 2 दिनों तक काम करता है और बाकी का काम करने के बाद छोड़ देता है, और बाकी का जो शेष काम जो बचता है ए कितने दिनों में करेगा, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पर बी और सी के 2 दिन का काम निकाल लेते हैं और उसमें से फिर शेष काम निकाल लेते हैं और शेष काम को फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने दिन में ए कर रहा है उससे, तो हमको मिल जाएगा शेष काम को ए कितने दिन में कर लेगा। तो इसको देखिए इस तरह से रफ वर्क कर देते हैं। तो आपका बी का 2 दिनों का काम बी 20 दिन में पूरा काम करता है, तो 2 दिन का काम इसका 2/20 हो जाएगा और आपका सी का 2 दिन का काम 2/30 हो जाएगा। आपका शेष काम जब निकालिएगा तो यहाँ 1 माइनस ये हो जाएगा। तो आपका 1 माइनस अगर आप इसको कर देते हैं तो लघुत्तम आपका यहाँ पर 60 हो जाएगा, या फिर इसको कम कर देंगे तो 1 यहाँ 10 हो जाएगा और यहाँ 1/15 हो जाएगा। तो 15 और आपका 10 का लघुत्तम आपका हो जाएगा 30। तो यहाँ आप 30 लगा दीजिएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 तिया 30 और ये 15 दूना 30, तो आपका यहाँ 5/30 माने 1/6 हो जाएगा, बराबर 5/6 काम जो है आपका ए करेगा। तो ए आपका 18 दिन में एक काम कर लेता है, तो 5/6 काम कितने दिनों में करेगा, तो 5/6 गुने 18 हो जाएगा और 6 तिया 18 ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 15। मतलब शेष काम को ये जो है आपका 15 दिनों में कर लेगा। तो देख लीजिए 15 दिन जो है आपका ऑप्शन सी में है। सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3 विल बी सी। इन प्रश्नों का यदि आप डिटेल्स हल जानना चाहते हैं तो जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में जुड़िए। जॉइन फॉर एजुकेशन प्रतिदिन लाइव क्लास की व्यवस्था करती है ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। ए कैन कंप्लीट 1/3 वर्क इन 5 डेज। सो ये जो है आपका एक काम को करेगा 15 दिन में कर लेगा, और आपका बी जो है 2/5 काम 10 दिन में कर रहा है, तो 10 × 5 = 50 भागा 2, मतलब बी जो है आपका 25 दिन में कर लेगा। आप कहता है कि इन हाउ मैनी डेज बोथ ए एंड बी दोनों मिल करके कितने दिन में काम पूरा कर लेगा। तो ये काफ़ी इजी है। इसका जो रफ वर्क होगा 15 × हो जाएगा
25 और ये फिर 15 और 25 को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 40। तो काट दीजिए, 5 दिया 15 और ये हो जाएगा 5 अठे 40, 25 दिया यहाँ 75 हो जाएगा। 75/8 बराबर 75 को 8 से भाग लगाइएगा तो 9×3/8 हो जाएगा। तो 9×3/8 दिन में ए और बी दोनों मिल करके काम को समाप्त कर देगा। देख लीजिए 9×3/8 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका ऑप्शन बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आपका जो आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। तो एक 5वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इन प्रश्नों का डिटेल्स जानने के लिए आप जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में जरूर जुड़िए। वहाँ पर डिटेल्स के साथ साथ ये शॉर्टकट मेथड भी बताया जाता है। एक्चुअली में प्रतियोगिता परीक्षाओं में शॉर्टकट मेथड का ही उपयोग किया जाता है ताकि वहाँ पर समय प्रबंधन बना रहे। अगर आपका समय प्रबंधन ठीक रहेगा तो आप समय के आधार पर इस सब प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को भी देख लेते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। बोलता है कि 7 आदमी जो है किसी काम को 12 दिन में पूरा कर लेता है। कहता है कि कितना और अतिरिक्त आदमी लगा दिया जाए कि इसका डबल काम 8 दिन में पूरा हो जाए। M1 D1 W2 इक्वल टू M2 D2 W1 पर आधारित ये प्रश्न है। तो लगा दीजिए एक बार फार्मूला, इसको M1 D1 हो जाएगा और ये W2 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा M2 D2 और ये आपका हो जाएगा W1। लगाइए, M1 का वैल्यू आपका 7 है, यहाँ 7 लगा दीजिए। D1 आपका 12 है तो 12 कर दीजिए और W2 मैंने 2 गुना काम कर रहा है तो यहाँ 2 हो जाएगा। M2 आपका बोल रहा है कि फाइंड आउट करने के लिए, तो M2 यहाँ लिख दीजिए। D2 आपका बोल रहा है 8 दिन में करना है और W1 आपका 1 है। तो आप यहाँ देखिए कट जाएगा आपका 2 चौका 8 यहाँ पर और फिर 4 तिया 12 और इधर आपका M2 इक्वल टू हो जाएगा 7 तिया 21। मतलब उसको 21 आदमी का जरूरत होगा, लेकिन पहले से यहाँ पर 7 आदमी है तो एडिशनल कितना आदमी लगाएगा, तो 21 में 7 हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो हो जाएगा 14 आदमी अतिरिक्त इसको जरूरत पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लीजिए आपका 14 जो है ऑप्शन सी में है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना होगा, नहीं तो एक ऑप्शन यहाँ पर देखिए 21 भी दिया है, कन्फ्यूजन हो सकता है यदि यहीं तक निकाल के छोड़ देंगे तो। क्योंकि यहाँ बोल रहा है एडिशनल कितने आदमी का जरूरत पड़ेगा। 7 आदमी पहले से है तो वही 7 आदमी यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर उसको 14 आदमी का जरूरत पड़ेगा। तो आशा करते हैं कि ये आपका जो सॉल्यूशन है आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल या जो भी हो सीएचएसएल या बैंकिंग का, तो बैंक इस सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में टाइम और वर्क से प्रश्न पूछा जाता है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। इसका डिटेल्स भी जानने का ज़रूरत होता है, डिटेल्स के बाद ही शॉर्टकट अप्लाई करने से थोड़ा सा ठीक होता है, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो वहाँ पर शॉर्टकट का ही ज़रूरत पड़ता है। मैंने ये सारा सॉल्यूशन मैं अपने एक अभिष्ट मित्र को समर्पित किया है, डेडिकेटेड किया। आप लोग इसको देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और इसमें थोड़ा सा कुछ करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। यदि आप जॉइन फॉर एजुकेशन के लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर शॉर्टकट के साथ साथ आपका डिटेल्स भी बताया जाता है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैंने इसके सॉल्यूशन को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया और मैंने 5 प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हुए सॉल्व किया और ये सभी के सभी प्रश्न एसएससी के सीजीएल में किसी न किसी वर्ष में पूछा गया है और बहुत सारे यहाँ प्रश्न हैं, बहुत से प्रश्नों को भी हल किया जाएगा इन द नेक्स्ट क्लास। सो एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।